Now, the new topic is tribunals. Tribunals are quasi-judicial body. Quasi means little. It's not a complete court of law. It's different from the court of law. Since in the court of law, all the members have legal background, they have law degree, and they have all experience in the field of law. But when it comes to tribunal, there are many members who may not have law degree, they may not be advocates, or they have not expertise in the area of law. They have expertise of some other area of administration. Also, the tribunals do not function like the regular court. They are not bound by the rigid legal codes like Civil Procedure Code, Indian Evidence Act. They have flexibility of deciding the case according to principles of natural justice. So do remember that tribunals are quasi-judicial body. I repeat, they are not court of law, they are quasi-judicial body because they settle dispute in a very specific area of administrative activity, but they are not the regular court of law. Now, when you talk about the Indian Constitution, originally Indian Constitution did not have a dedicated chapter on tribunals. It was Indira Gandhi who introduced a specific part of tribunals in Indian Constitution. And why I said Indira Gandhi, because just to make you remember that the topic, just to make you remember that the chapter of tribunal in the Indian Constitution was added by 42nd Amendment Act 1976, and this part is part 14A, part 14A, A for apple. So part 14A is regarding tribunals in the Indian Constitution added by 42nd Amendment Act 1976. It's very interesting to know that this whole part 14A of the Indian Constitution has only two articles. One, Article 323A and Article 323B. इसमें दो ही आर्टिकल हैं, 323A और 323B. 323A allows Parliament to create tribunals which can settle disputes of the employees under central government, state government और any local body. मतलब आर्टिकल 323A का यूज करके पार्लियामेंट कोई ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश कर सकता है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, पब्लिक सर्वेंट का सर्विस कंडीशन को लेकर जो डिस्प्यूट है उसको सेटल कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हो, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हो, लोकल गवर्नमेंट में काम करते हो, या किसी पब्लिक कॉर्पोरेशन में काम करते हो जैसे कि कोई PSU. अब इसी पावर का यूज करके पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1986, जिसकी वजह से हमें CAT मिला, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल मिला, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल मिला, और जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाने का कॉन्सेप्ट भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1986 की वजह से होता है. बट पार्लियामेंट को ऐसा लॉ बनाने की पावर कौन देता है? आर्टिकल 323A. दूसरी बात, आर्टिकल 323A सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का जिक्र करता है. आर्टिकल 323A इज ओनली एंड ओनली अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल. बट if you want to create tribunals to settle dispute in any other area like debt recovery, like National Green Tribunal, so if you want to create any other tribunal other than administrative tribunal, then the power comes from Article 323B. Article 323A administrative tribunal बनाने की बात करता है और 323B किसी भी एरिया में पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि आप किसी भी एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को छोड़कर किसी भी एरिया में आप एक ट्राइब्यूनल क्रिएट कर सकते हैं. और इस पावर का यूज करके पार्लियामेंट ने बहुत सारे ट्राइब्यूनल क्रिएट करे हैं. ये जो ट्राइब्यूनल है, जैसे मैंने बोला आपको कि ये कोर्ट ऑफ लॉ से थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में जितने भी मेंबर होते हैं वो सब लीगल बैकग्राउंड से होते हैं, उनके पास LLB की डिग्री होती है और उनका पूरा एक्सपीरियंस लॉ के फील्ड में ही होता है. मगर ट्राइब्यूनल के कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनके पास LLB की डिग्री नहीं भी होगी, उनका बैकग्राउंड लॉ में नहीं भी होगा. साथ ही में जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो अलग अलग इश्यूज के डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है. जैसे हाई कोर्ट को देखिए, कोर्ट ऑफ लॉ है,
वो मर्डर का केस भी सॉल्व करता है, टैक्सेशन का केस भी सॉल्व करता है, इलेक्शन से जुड़ा केस भी सॉल्व कर सकता है, एनवायरमेंटल मैटर से जुड़ा केस भी सॉल्व कर सकता है। मगर जो ट्राइब्यूनल होता है वो एक खास एरिया से जुड़ा डिस्प्यूट ही सॉल्व कर सकता है, बाकी हर एरिया के डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर सकता। सो द वर्किंग एरिया ऑफ अ ट्राइब्यूनल इज वेरी नैरो। दूसरी बात, कोर्ट ऑफ लॉ जो लॉ है उसे बड़ा रिजिडली अप्लाई करता है, मतलब वर्ड बाय वर्ड जो दिया है लॉ में वो उसको वैसे अप्लाई करता है। मगर जो ट्राइब्यूनल है वो कोड ऑफ लॉ से उतना बंधा हुआ नहीं है। जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908, एनजीटी उससे बंधा हुआ नहीं है। एनजीटी जब एक मैटर को सॉल्व करता है, एक डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और उस एरिया से जुड़े जो बेसिक लॉज हैं उनको ध्यान में रखकर वो डिस्प्यूट सॉल्व करता है। यहां पर जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो भी थोड़े कम फॉर्मल हैं कंपेयर टू कोर्ट ऑफ लॉ। तो जो ट्राइब्यूनल है वो जस्टिस एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में देते हैं और जस्टिस जल्दी देते हैं। अभी ट्राइब्यूनल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2021 में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था जिसका नाम था ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021। पार्लियामेंट पास अ लॉ, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021। In November 2025, Supreme Court of India struck down number of provision of these laws. नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के इस लॉ के कई प्रोविजन स्ट्राइक डाउन कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 में ये लिखा था कि अगर कोई मेंबर है ट्राइब्यूनल का तो उसका टेन्योर 4 साल का ही होगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 4 साल का नहीं, आपको उनको 5 साल का टेन्योर देना पड़ेगा। एक कंसिडरेबल टाइम उनके पास उस ट्राइब्यूनल में होना चाहिए। ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 ने यह भी बोला था कि जो एडवोकेट ट्राइब्यूनल का मेंबर बनना चाहते हैं, जिनके पास कंसिडरेबल वर्किंग एक्सपीरियंस भी है और वो उस ट्राइब्यूनल का जुडिशियल मेंबर बनना चाहते हैं, तो उसकी मिनिमम एज 50 साल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है 50 साल की उम्र बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कोई वकील ऐसा है जिसकी उम्र 35 साल है और उसके पास 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो वो ट्राइब्यूनल का मेंबर बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जो मिनिमम 50 साल की जो एज है इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द मिनिमम एज एलिजिबिलिटी ऑफ 50 years to become the member of a tribunal, and Supreme Court said that anybody lower than 50 years of age should also be allowed to become a judicial member of a tribunal if he or she has the required work experience in the required area. साथ ही में नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी बोला है कि एक नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड दैट देयर शुड बी अ नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन which will look after the appointment in different tribunals, matlab which will manage the appointments in different tribunals, since number of tribunals have got huge vacancies there. Also, this national tribunal commission is expected to handle the service condition of the members of the tribunal as well as provide them required administrative infrastructure. Whatever infrastructure they need, National Tribunal Commission will provide to all the tribunals in India. Supreme Court of India gave Government of India 4 months to create National Tribunal Commission, but unfortunately even today, till March 2026, this commission has not been formed by the Government of India. In February 2026, Supreme Court of India again gave the Government of India 4 weeks time and told Government of India that you are supposed to create National Tribunal Commission which will look after the appointment of the members of different tribunals. This will ensure that the members work under no pressure from the government. Now, when it comes to the decisions of the tribunal, where can you challenge the decision? See, various tribunals have different powers and they are created under different laws. Certain tribunals, the decision can be challenged in the High Court and then we can go to Supreme Court. For example, CAT, SAT and even NGT, National Green Tribunal. The decision of these tribunals can be challenged in the High Court as upheld by Supreme Court of India also. See, when it comes to tribunal, a particular tribunal which was all through in news in the last 2 years is the Foreigners Tribunal. Now, let me give a brief background. Foreigners Tribunal
are primarily the tribunals which are created to check or to hear the cases regarding the citizenship status of certain residents of India. Now, let's say there is a person whose name is not reflected in NRC, National Register of Citizens. His name is not there in the citizen register. Then he can go and he can complain in the Foreigners Tribunal and he can seek redressal. The Foreigners Tribunal will ask for identification from this person, and if the tribunal is convinced that he is an Indian citizen, his citizenship will be restored, his name will be included in the NRC. But if the tribunal is satisfied that this fellow is not able to prove his Indian citizenship, then tribunal can order the detention of this person and eventually he can be deported also out of India. So Foreigners Tribunal is very, very important for your upcoming examination. The point is that question number 1, Foreigners Tribunal, can they be formed in any state of India? Answer is yes. Foreigners Tribunal are created by the law of Parliament, which is Foreigners Act 1946. एक पार्लियामेंट का लॉ है जिसे कहते हैं फॉरेनर्स एक्ट 1946. इस लॉ के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया. उस ऑर्डर का नाम था फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ही फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बनाए गए. इनको बनाने की जो पावर थी शुरू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही थी, मगर 2019 में फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर में अमेंडमेंट किया गया और ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई. सो इफेक्टिवली नाउ इफ समबडी आस्क्स यू दैट who can create a foreigners tribunal, is it the government of India or is it the state government? So the answer is both. Government of India can also create it and the state government can also create. As of now, we see foreigners tribunal only and only in the state of Assam. आज की डेट में foreigners tribunal सिर्फ असम में काम कर रहे हैं, बाकी स्टेट में काम नहीं है कर रहे हैं, वहां पर वो स्टैब्लिश भी नहीं है. मगर मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में foreigners tribunal कहीं पर भी बनाए जा सकते हैं अंडर द लीगल प्रोविजंस. असम के अंदर ही लगभग 100 फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल काम कर रहे हैं. अगर आज कोई केस फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के पास आता है तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को वो केस 60 डेज में सॉल्व करना पड़ेगा, 60 डेज में डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा. 60. अभी हाल ही में लास्ट ईयर पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया. उस लॉ का नाम था इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025. इस लॉ के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया. उस ऑर्डर का नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025. इस ऑर्डर ने 1964 का जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर था उसको रिप्लेस कर दिया है. अकॉर्डिंग टू दिस, नाउ फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल कैन ऑल्सो इशू अरेस्ट वारंट. नाउ सपोज आई एम द फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल वर्किंग इन असम and I feel that you have illegally entered into India and you are not citizen of India. I can order your arrest and I can send you to the detention center from where you can be deported back to your parent country or whichever country. So with this power of arrest, foreigners tribunal have been given the power of judicial magistrate first class. तो अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछता है कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की पावर है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर है, तो आंसर है उसके पास दोनों की पावर है. सिविल कोर्ट की तरह वो किसी को भी अपने सामने पेश होने का ऑर्डर कर सकता है, समन करने का ऑर्डर कर सकता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट होने की पावर से वो किसी को भी अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकता है. मोस्टली फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल सिंगल मेंबर बॉडी ही होती है, बट ये मल्टी मेंबर भी हो सकती है, 2 या 3 मेंबर भी इसमें हो सकते हैं. फिलहाल जो असम में ट्राइब्यूनल काम कर रहे हैं वो ज्यादातर सिंगल मेंबर ट्राइब्यूनल ही है. अब ये जो मेंबर आप बनाते हैं, जो ट्राइब्यूनल के मेंबर बनेंगे, जो ट्राइब्यूनल को चेयर करेंगे, वो किस फील्ड से आएंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी. देखिए 3 ब्रॉड फील्ड हैं जहां से आप किसी फॉरेनर ट्राइब्यूनल के मेंबर को पिक कर सकते हैं. पहला है ही मे बी अ रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर. ही मे बी अ रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर. फॉर एग्जाम्पल पहले वो जुडिशियल सर्विस में थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो आप उनको फॉरेनर ट्राइब्यूनल के अंदर ऐड कर सकते हैं. ही मे बी अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट. कभी वो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर थे, अब रिटायर हो चुके हैं,
आप उनको मेंबर बना सकते हैं. और he may be a practicing advocate with minimum 35 years of age and minimum 7 years of legal practice. ऐसे ही जो दूसरा ट्राइब्यूनल है जो काफी न्यूज में था वो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी. अब क्वेश्चन आता है कि इज एनजीटी अ स्टैट्यूटरी बॉडी? क्या ये पार्लियामेंट के लॉ से बनाई गई है? आंसर इज यस. एनजीटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट. लॉ का नाम है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010. NGT handles the disputes related to environmental protection, forest conservation and compensation for damages. So 3 areas हैं जहां पर NGT केस डील करता है. पहला है environmental protection, forest conservation and compensation for damages. देखिए NGT के primarily 5 benches हैं. The main headquarter, the principal bench is in Delhi. इसके अलावा देश के चारों कोनों में इसकी एक bench है. One is in Pune, other is in Kolkata, one is Chennai, and Central India के लिए भोपाल है. Now the other important area is that NGT can deal with which type of cases? Now let me tell you, according to NGT Act, NGT can deal with only those matter which relate to 7 specific laws. 7 laws हैं जिनसे जुड़ा मामला जो है वो NGT में लेके जाया जा सकता है. ये 7 लॉज कौन से हैं आपको एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए. सो बेसिकली देयर आर 7 लॉज. द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू दीज लॉज कैन बी टेकन टू एनजीटी. 1. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर सेस एक्ट 1977, एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरमेंट एक्ट 1986, Biodiversity Act 2002, Public Liability Insurance Act 1991. Now, mind you, please remember, NGT can deal with the case related to the Forest Act 1980, but NGT cannot deal with the case related to Indian Forest Act 1927 and Wildlife Act 1972. NGT Wildlife Act 1972 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 से जुड़े मैटर को डील नहीं कर सकता. ये 2 चीज आप याद रखिएगा. इनसे जुड़े मैटर को आप एनजीटी में लेकर नहीं जा सकते. जैसे मैंने बोला कि ट्राइब्यूनल के अंदर जुडिशरी बैकग्राउंड के लोग भी हो सकते हैं और नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड के एक्सपर्ट भी हो सकते हैं. ऐसे एनजीटी में भी है. अगर एनजीटी की कंपोजिशन की बात करें तो एनजीटी में एक चेयरपर्सन होंगे. नाउ द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी विल बी द रिटायर्ड Supreme Court judge or serving Supreme Court judge, retired Chief Justice of High Court or serving Chief Justice of High Court. Simple as that. The chairperson of NGT will be a serving or retired Supreme Court judge or serving or retired Chief Justice of any High Court. And when it comes to the judicial members, there can be minimum 10 judicial member, maximum 20 judicial member. Expert members, again, the minimum expert members will be 10, maximum expert members will be 20. तो एनजीटी की मेंबरशिप में एक चेयरपर्सन होंगे, कुछ जुडिशियल मेंबर होंगे, कुछ एक्सपर्ट मेंबर होंगे जो नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड के होंगे. तो जो जुडिशियल मेंबर है मिनिमम 10, मैक्सिमम 20. एक्सपर्ट मेंबर मिनिमम 10, मैक्सिमम 20. चेयरपर्सन सर्विंग ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं, सर्विंग ए रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं. नाउ बिफोर आई कंक्लूड, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग दैट नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन हैज नॉट बीन फॉर्म्ड येट. एनटीसी अभी तक बना नहीं है, बट फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की वजह से एक ट्राइब्यूनल विंग है. देयर इज अ ट्राइब्यूनल विंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. दैट ट्राइब्यूनल विंग इज सर्विंग ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स ऑफ ऑल द ट्राइब्यूनल्स ऑफ इंडिया टिल एनटीसी इज फॉर्म. जब तक एनटीसी नहीं बन जाता, इंडिया के जितने भी ट्राइब्यूनल है फिलहाल उनको सपोर्ट देने का काम ट्राइब्यूनल विंग कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में. तो याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि ट्राइब्यूनल विंग किस मिनिस्ट्री में काम करता है, तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ज्यादातर लोग हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ होम मार दें, मगर आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस.